31,000 रुपये का बिल बना था लेबर पेमेंट, जिसमें 10,000 रुपया मेरे को मिला है। 21,000 रुपये बकाया है और मैं अब किसके पास जाऊं, किससे पेमेंट मैं लूं? मेरा लेबर जान खा रही है, पेमेंट मांग रही है, मैं कहां से पेमेंट करूं? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਠੇਕਾ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 21,000 ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਇਹਨੇ ਲੇਬਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਰ ਜੂਗਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੂੰਗਾ। 21,000 ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਤੋਂ। पंचायत मैंबर जिन्ने भी हैं या सरपंच साहब है, वो खुद जानते हैं भी पाठक जी ने अज तक उन्हां लई क्या कुछ किया है, जिन्हां ते अज वो इल्जाम लगा रहे हैं। इनके पास अब तो भगवान जाने लाइसेंस भी है कि नहीं है, काम करते हैं। अब जो भी काम हुआ है बलौंगी के अंदर, वो उसका लेवल बिल्कुल सही नहीं है। ना कोई ड्रेन वाटर, कोई पानी जाने का रास्ता है, ऊंचा नीवा गली बना हुआ है। कि पैसा ही गरीब को दें, जो भी पेमेंट बनता है। अब मुन्ना को बोलता, मुन्ना कोई ठेकेदार है, सिविल इंजीनियर है, कोई है भी नहीं लाइसेंस। सबसे पहला बात कि मैं वहाँ का ठेकेदार ही नहीं हूँ। ठेकेदार वहाँ पे दूसरा कोई बंदा है, सेक्रेटरी जेई सरपंच मिलके अपना ठेकेदार चुने हैं जी। चाहे तो आप बोलोगे मैं अभी रामाशीष को फ़ोन करके बात करा सकता हूँ, मैंने नहीं बुलाया पाठक उनको, रामाशीष को। हाँ, 10,000 रुपये दिया हुआ है, सेक्रेटरी साहब ने मेरे सामने दिया है उनको। बिल्कुल ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਹੋਗੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ हैं। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਮੁੰਨਾ ਜੀ ਕਿਤੇ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਆ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਠੇਕਾ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 21,000 ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਇਹਨੇ ਲੇਬਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਰ ਜੂਗਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਉਪਚਾਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੂੰਗਾ। 21,000 ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਊਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਉਹ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਮੁੰਨਾ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ? ਦੇਖੋ, ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਮੁੰਨਾ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਹੋਗੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ हैं। ਲਗਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਠਕ ਤੇ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਸਮਰਥਕ ਪਾਠਕ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਠਕ ਜੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣਗੇ, ਤੇ ਪਾਠਕ ਜੀ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਪਾਠਕ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇਹ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਮੁੰਨਾ ਯਾਦਵ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ ਸਾਡੇ। ਉਹ 'ਚ ਪਾਠਕ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਠਕ ਜੀ ਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ? ਕੁਛ ਵਿਗਾੜਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦ ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਵੀ ਪਾਠਕ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿਆ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਉਹੀ ਪਾਠਕ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਫੋਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਖੜਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਜੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਰਾਸਤੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਜੋ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਜਿਹਨੇ ਲੋਕ ਪੰਜ ਦੇ ਘਰੇ ਵੀਰ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਗਾ ਜੀ? ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮੱਤ ਬਖਸ਼ਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜੋ ਬਣਦੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਮਨੀਸ਼ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਵਾਓਗੇ? ਭਾਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਜੀ। देखो जी, बात ऐसा है, पहला नंबर बात सुनिए मेरा। मैं मानव जन कल्याण समिति के प्रधान होने के नाते रामाशीष जी, जो हमारे बहुत ही सेवादार ने और कमेटी के यहाँ के लोगों के लिए बड़े अच्छे ढंग से काम करते हैं और सभी के दुख सुख में वो खड़े होते हैं।
नंबर 2 बात यह है कि अगर इन्होंने काम किया है तो मुन्ना जी को इनको बाइज्जत पैसे दे देने चाहिए। दूसरा नंबर बात, मनीष जी जो आप सरपंच का इलेक्शन लड़ रहे हैं, इन्होंने आपको अभी जवाब दिया है, ये अपने बलों सहानुभूति कर रहे हैं उस आदमी को, राम आशीष जी को। लेकिन अब आप देखो, मैं किसी की न बदनामी के पक्ष में हूँ, आदमी को तो प्रॉपर देखो, इनके पास अब तो भगवान जाने लाइसेंस भी है कि नहीं है, काम करते हैं। अभी जो भी काम हुआ है बलौंगी के अंदर, वो उसका लेवल बिल्कुल सही नहीं है, ना कोई ड्रेन वाटर, कोई पानी जाने का रास्ता है, ऊंचा नीमा गली बना हुआ है। अब रह गई बात 21,000 रुपये का, 21,000 रुपये के लिए अगर इनको पैसे, मुन्ना जी से मैं खुद बात करूँगा कि मुन्ना जी ये 21,000 रुपया कहते हैं कि आपके जी में निकलता है, अगर मुन्ना जी इनके पैसे दे देते हैं तो मैं अपने लेवल से देखूंगा क्या करना है, और राम आशीष के बीच में और मुन्ना जी के बीच में बैठा के मैं चाहूँगा कि इनके पैसे मिल जाए। अगर इनके पैसे नहीं मिलते हैं तो मनीष जी समाज सेवी द्वारा पैसे तो देने के लिए आश्वासन दे ही रहे हैं। बाकी और क्या पूछना चाहते हैं आप मेरे से? नहीं तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कराएंगे? जब वो पैसा नहीं देंगे तो उसके बाद की बातें आती है ये। अभी हम पहले ही क्यों उनको धमकी देने लग जाएं कि पैसा नहीं देंगे तो या करेंगे वह करेंगे? अभी तो हमारी उनसे कोई बात नहीं हुई। अभी हमने उनसे बात करना है कि ये 21,000 रुपये राम आशीष जी का निकलता है, तो आप बाइज्जत दे दे कृपा करके, ठीक है? तो अगर वो नहीं देते उसके बाद समिति की सारी मीटिंग होगी, फिर बताएंगे कि करना है कुछ कि नहीं करना है। क्या नाम है जी आपका? राम आशीष। किस प्रकार की समस्या है जो आज आपको मीडिया के सामने आना पड़ा? मैं एकता कॉलोनी में प्लम्बर का काम किया हूँ पंचायत के थ्रू, और 31,000 रुपये का बिल बना था लेबर पेमेंट, जिसमें 10,000 रुपया मेरे को मिला है, 21,000 रुपये बकाया है। और अभी मुन्ना यादव मेरे को बुलाए थे, और कौन है? मुन्ना यादव ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर रोड बनाने का, ठीक है। और जो प्लम्बिंग का काम हुआ था सारा ठेका उनके बीच में था, और उन्होंने अब मुकर रहे हैं कि पाठक जी देंगे, हमारा कॉन्ट्रैक्टर नहीं है। और मैं अब किसके पास जाऊं, किससे पेमेंट मैं लूं? मेरा लेबर जान खा रही है, पेमेंट मांग रही है, मैं कहां से पेमेंट करूं? अब मैं क्या करूं लास्ट में? कितना समय हो गया है जो जुलाई में काम हुआ था? जुलाई में काम हुआ था। जुलाई में काम हुआ था, अभी तक कोई पेमेंट नहीं मिली। अब पंचायत भंग हो गई है, और पेमेंट कहाँ से मिलेगी मेरे को? तो जो सरपंच है उनसे नहीं बातचीत करी आपने? नहीं, उनसे बात अभी हुई, वो बोलते हैं मेरे अंडर नहीं है। अंडर नहीं है? हाँ, अब कह रहे हैं कि हमारे से कोई बात। काम दिया था मुन्ना यादव ने। मुन्ना यादव ने? हाँ जी। तो अभी क्या कर रहे हैं? उनके बरखिलाफ कोई शिकायत वगैरह दोगे या किस तरह से? अब मैं आगे का पेमेंट नहीं मिलती सोमवार तक, तो आगे मैं शिकायत दूंगा। जिस तरीके से एक व्यक्ति के पैसे नहीं दिए गए पंचायत की तरफ से, ठेकेदार मुन्ना की तरफ से पैसे नहीं दिए गए, 21,000 रुपये बकाया है, तो क्या कहना चाहोगे इस बारे में? मैं इस बात में कहना चाहता हूँ कि मुन्ना का तो कोई लाइसेंस है नहीं, दिनेश उसको ठेकेदारी कैसे दे दिया? दूसरी बात यह है, सुनिए, इलेक्शन के पहले दिनेश बोला था कि छठ घाट बनवाऊंगा, एम्बुलेंस चलाऊंगा। सुन लीजिए, ना एम्बुलेंस नया ना छठ घाट बना। कहने का मतलब ये होता है, एक गरीब आदमी है, लेबरर आदमी है, इसको जो है ना पैसा मिलना चाहिए। और देखिए, कोई भी बंदे इस बलौंगी का पंचायत का फॉर द मंथ ऑफ नवंबर में इलेक्शन होना है, सुन लीजिए, पब्लिक को भलाना चाहिए। ये पंचायत है, छठ घाट का वादा जो किया, एम्बुलेंस को जो किया, वो तो होना चाहिए। वो गिरी जी हूँ, मैं हूँ, जो भी हो, कहने का मतलब गरीब को पैसा मिल जाएगा जैसे बोलते हैं। देखिए, गरीब का भी सेक्रेटरी के सामने बात किया कि मैं कल आ रहा हूँ, सेक्रेटरी है, वीडियो है, तो उनको पैसा तो इसको देना चाहिए। लेबरर अपने बच्चों को कहाँ से पालेगा, रोटी कहाँ से लाएगा? इस प्रकार का संभावना अगर हिंदुस्तान में रहेगी तो गलत होगा। मैं इसका सपोर्ट नहीं करता हूँ। दिनेश जी मस्त हैं, वो भी मस्त हैं, ऐसे थोड़े काम चलेगा। सेक्रेटरी को ड्यूटी होती है कि पैसा एक गरीब को दें, जो भी पेमेंट बनता है। अब मुन्ना को बोलता, मुन्ना कोई ठेकेदार है, सिविल इंजीनियर है, कोई है भी नहीं लाइसेंस। जे विकास की बात की जाए तो जो विकास कार्य जो हुए हैं, जो सड़कें गलियां बनाई गई हैं, उसमें अभी तक निकासी, जो बरसाती पानी की निकासी की पाइपें नहीं डाली गई और सड़कें बना दी गई है। हाँ। अगर दोबारा निकासी पाइपें ना सुनिए, डालने पड़े तो पैसों का दुरुपयोग नहीं होगा? सुनिए, अभी पेमेंट आपको, ये भारत सरकार का पैसा है, ये राज्य सरकार का पैसा नहीं है। भारत सरकार का पैसा मिसयूज किया गया, उसमें सीओ खाता है, बीडीओ खाता है, सेक्रेटरी खाता है, भी खाते हैं।
8 साढ़े 8 करोड़ रुपया गया, कितना पंचायत में पैसा खर्चा हुआ। तो ये पब्लिक को समझना चाहिए। ये खड़े हो राम खड़ा हो रहे हैं, सरदार जी खड़ा हो रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ना छठघट बना, ना एम्बुलेंस नहीं आया। तो कहने का मतलब है जब विकास के काम करो, कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी गवर्नमेंट हो। भारत सरकार में हजारों गवर्नमेंट बनी है, मोदी जी हैं, इधर जो है आम आदमी पार्टी है। तब विकास का नया MLA आता है, गरीब आदमी है, लोगों को विकास हो नहीं रहा है। इसलिए विकास करो, फालतू बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक गरीब आदमी को पैसा दो, पैसा गया कहाँ? 8.5 करोड़ पैसा गया कहाँ? पूछिए इनसे। मुना कौन ठेकेदार है भी नहीं लाइसेंस तू मुना है भी लाइसेंस तू मुना को लाइसेंस है, उसको ठेकेदारी अशोक को दिया, इनको दिया गिरी का भी सामने बोरा, इनको बजरी सीमेंट का दिया उठाओ। अशोक के पास लाइसेंस है, पूछिए। मुन्ना के पास लाइसेंस है, क्यों दिया इनको ठेकेदारी? ये सब मिली भगत है, पैसा हड़पने की बात है भारत सरकार का। मुन्ना जी, आपके ऊपर रामशीष ने एक इल्ज़ामबाजी करी है कि उनको आपने कल कुछ काम वगैरह दिया था जब गलियां वगैरह बन रही थी, तो 31,000 में डील हुई थी और जिसमें से 10,000 रुपये आपने दिए और 21,000 रुपये दिए नहीं, जिसमें आपने ये कहा कि विजय पाठक ही पैसे देंगे। क्या कहना चाहोगे? देखो जी, विजय पाठक वहाँ के पंच हैं, उस एरिया के विजय पाठक पंच हैं। पहले मेरे बलौंगी का ठेका था, इस बार ठेका किसी और को दिया गया है। मैं वहाँ का ठेकेदार तो है ही नहीं जी। सबसे पहला बात कि मैं वहाँ का ठेकेदार ही नहीं हूँ, ठेकेदार वहाँ पे दूसरा कोई बंदा है। सेक्रेटरी जेई सरपंच मिलके अपना ठेकेदार चुने हैं जी। मुझे सुपरवाइजरी में रखा गया था कि सामान कोई इधर उधर ना हो जाए, कहीं टाइलें ना गिर, मतलब कोई ले जाए, सीमेंट ना ले जाए, मतलब देख रेख में रखा हुआ था। और प्लम्बर को काम रामाशीष जी को बुलाया पाठक जी ने ही था। चाहे तो आप बोलोगे मैं अभी रामाशीष को फ़ोन करके बात करा सकता हूँ, मैंने नहीं बुलाया पाठक उनको, रामाशीष को। हाँ, 10,000 रुपये दिया हुआ है, सेक्रेटरी साहब ने मेरे सामने दिया है उनको। अब कितना में काम का बात हुआ है, उनकी लेबर कितनी लगी है, क्या काम हुआ है, ये वो जानते हैं जी। जो आप पे इल्ज़ामबाजी लगा नहीं, बिल्कुल गलत, काम करने के लिए की जा रहा है। बिल्कुल ये चुनावी स्टंट है। अब की बार पक्का सरपंच बन ही जाएंगे वो लोग, इसमें कोई राय नहीं है, ठीक है ना। ये तो सबको पता है कि सरपंची की जैसे बरसाती मेढक की तरह लोग ऊपर गर्मी ज़्यादा हो गया है तो निकल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। मेरा तो पहला कि मेरा ठेका ही नहीं है जी। अगर जब मेरे साथ ठेका ही नहीं है तो मैं किस चीज़ का पैसा दूंगा, किस चीज़ का लूँगा? अगर है तो मैं अभी रामाशीष जी को फ़ोन लगा लेता हूँ, आपके सामने पूछ लेता हूँ जी, भाई मैंने ठेका दिया हुआ है कोई?